سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی فیصل آباد آمد، سینیٹر طلال چودھری نے استقبال کیا۔ سابق سینیٹر فاروق خان کے گھر جا کر ان سے کزن اسرار منی خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ سابق وزیر اعظم کی آمد پر زرعی یونیورسٹی میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا۔ میاں نواز شریف ہیلی کاپٹر سے اترے تو سینیٹر طلال چودھری نے ان کا استقبال کیا۔ سینیٹر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر اور سی پی او کامران عادل بھی موجود تھے۔ میاں نواز شریف سابق سینیٹر فاروق خان کے گھر پہنچے، جہاں لیگی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ سابق سینیٹر فاروق خان سے ان کے کزن اسرار احمد منی خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ میاں نواز شریف کے بعد لیگی ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 اسرار احمد منی خان مرحوم کے گھر پہنچے اور مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چودھری عابد شیر علی اور میاں طاہر جمیل بھی ان کے ہمراہ۔ میاں نواز شریف ہیلی کاپٹر سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر چودھری عابد شیر علی کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لیگی قائد کی آمد پر حوصلہ افزا ہے، امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کسی پابندی کو نہیں مانا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دفاع کے لیے کسی کی نہ ڈکٹیشن پہلے دی تھی ماضی میں، اس وقت جب نیوکلیر ٹیسٹ نواز شریف نے کیا تھا، پھر اللہ نے نون لیگ کا ہی موقع دیا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے رائٹ کو پرزرو کرے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے فیصل آباد آمد پر چودھری شیر علی کی عیادت اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیا سال سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزا معافی پانے والوں میں 4 کا تعلق فیصل آباد سے نکلا ہے۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران 67 مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کر لیا گیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جن مجرمان کو معافی ملی ان میں لئیق احمد، امجد علی، محمد سلمان اور محمد علی شامل ہیں۔ معافی پانے والے مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے کے قانونی حقوق برقرار ہیں۔ اس سے قبل اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے رہائشی آبادی بڑھاؤ مشن پر گامزن ہے اور ہر ماہ 25,000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے متحد شعبوں کی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ضلع بھر میں 67 لاکھ مریضوں کا چھوٹی اور بڑی علاج گاہوں میں چیک اپ کیا گیا، جبکہ 1 لاکھ افراد کے آپریشن ہوئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا ہے کہ روزانہ اوسط 800 بچے ضلع کی علاج گاہوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تمام ہاسپٹلز میں کوئی 67 لاکھ کے قریب جو مریض ہیں وہ او پی ڈی ڈپارٹمنٹ میں ڈیل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 1.5 لاکھ مریض ایسے تھے جن کو داخل کر کے ان کا علاج کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد مریضوں کے آپریشن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لیبارٹری ٹیسٹوں کی بات کریں تو 2 لاکھ کے قریب مریض ایسے تھے کہ جن کے مختلف قسم کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی 1 لاکھ کے قریب ہم نے مریضوں کے ایکسریز کیے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے پیش نظر سی او ہیلتھ نے ہسپتالوں کے ایم ایس اور دیگر متعلقہ محکموں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ 7 سال کے دوران پیدا ہونے والے بچوں کا تحصیل لیول پر ریکارڈ حاصل کر کے محکمہ صحت کو جمع کرایا جائے گا۔ حاصل کردہ بچوں کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ گزشتہ سال ضلع بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں 67 لاکھ مریض چیک اپ ہوئے ہیں۔ 275 فارمیسی اور میڈیکل سٹورز کے چالان کیے گئے۔ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 212 افراد پر مقدمہ درج کرایا گیا۔ 4,75,000 حاملہ خواتین کو تشنج سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو الحمدللہ فیصل آباد میں اس سال صرف 126 جو ہے وہ کنفرم ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے، جو کہ پچھلے سالوں کی نسبت اگر 3-4 سال کا جائزہ لیں تو ان میں سب سے کم ہے۔ سال 2024 کی جاری کردہ رپورٹ میں صحت میں بہتری سے متعلق منصوبے بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے ہیں۔ M3 کو جڑاوالا سے لاہور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ عوام غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ ڈرائیور حضرات دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں۔
और फैसलाबाद डिवीजन पर धुंध का राज, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गए। ठिठुरते मौसम के दौरान धुंध ने भी फैसलाबाद डिवीजन को लपेट में ले लिया। सरहदी शहर में सुबह सवेरे हद निगाह शदीद मुतासिर हुई, जिसके बायस शहरियों ने घरों में पड़ाव बढ़ा दिया। झंग के शहरी भी सर्द हवाओं के थपेड़ों और धुंध से दबकर घरों में मुकीद होकर रह गए। तोबा टेक सिंह और गिरदोनवा पर भी धुंध का राज बरकरार रहा। चिन्योट शहर और गिरदोनवा के इलाकों में धुंध के बायस बादल मंडराते। फैसलाबाद में धुंध छाने से मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 रात और सुबह के औकात में धुंध की वजह से बंद रही। मोटरवे M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान धुंध के बायस बंद रखी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब। सुबह के औकात में धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हुई। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस, फैसलाबाद से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई। कराची से बरास्ता पिशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस, लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस कई घंटे ताखीर के साथ मंजिल पर पहुंची। ट्रेनों की ताखीर, परेशान मुसाफिर सर्दी में ठिठुरते में जारी धुंध से PIA का फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट के लिए PIA की परवाजें मुतासिर हुई। मुसाफिर PIA के कॉल सेंटर या वेबसाइट से परवाज की आमदो रफ्त की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सर्दी बढ़ते ही चिन्योट में कोयले की कीमत को भी आग लग गई, मजीद महंगा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चिन्योट में कोयले की फी मन कीमत 400 रुपए बढ़ गई। ओपन मार्केट में तो कोयले के निरख 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिए गए। शहरियों का कहना था कि अब कोयला खरीदना भी मुश्किल हो चुका। पहले 120 रुपए फी किलो मिलता था, अब 130 से 150 रुपए फी किलो तक मिलता है। गरीब इस महंगाई में कैसे गुजारा करें? पहले 120 रुपए का मिलता था, अब इधर से 130 रुपए मिल रहा है। तो कहीं और से लें तो उनकी अपनी कीमतें हैं, कमी का ही करना है, मुतालबा भी कमी हो। महंगाई अभी ऐसे ही है, अभी जो मुतालबा जो हो रहा है, महंगाई चल रही है, उसके खास कमी होनी चाहिए। शदीद सर्दी से भवाना में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुई गैस की लोड शेडिंग और LPG की अदम दस्तयाबी ने लकड़ी भी महंगी कर दी। LPG शहर में 350 और देही इलाकों में 400 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। खुश्क लकड़ी नाम की भी दस्तयाब नहीं, गीली लकड़ी भी 1300 रुपए फी मन मिलने लगी। शहरियों का कहना था कि आटा, घी और चीनी हो भी खाना कैसे पकाएं। रात को अक्सर भूखे ही सोना पड़ता है। गैस को हम छोड़ के तो लकड़ियां लेने के लिए आते हैं, तो लकड़ियां जो होती हैं वो इंतहाई गीली होती हैं। खुश्क लकड़ी जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है और इस वक्त जो लकड़ी मौजूद है यहाँ पे, इसका रेट जो है वो 1300 से 1500 रुपये मन तक है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लकड़ियाँ गीली जला के जो वो खाना जो है हम बर वक्त नहीं बना सकते हैं। दूसरी तरफ LPG की तरफ जाएं तो LPG का जो रेट है वो 350 रुपये किलो भवाना में है, लेकिन इर्द गिर्द के देहातों में उसका रेट 400 से भी ज्यादा हो जाता है। LPG कागजों में सस्ती, मार्केट में महंगी हो गई। अहमदपुर सियाल के अवाम LPG की कीमत में कमी से महरूम रहे। शहर में LPG 320 रुपए फी किलो बिकने लगी। मुतबादल ईंधन भी शहरियों की पहुंच में न रहा। सारिफीन का कहना था कि खून जमा देने वाली सर्दी में LPG खरीदना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल जो है ना, चूल्हा जल रहा है, गरीब तो पीस रहा है बहुत ज्यादा। लकड़ी जो है ना वो 1400-1500 मन बेच रहे हैं। हर किसी का अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है, कहीं 300 है तो कहीं 320 गैस है। तो यहाँ गरीब जो है ना, ज्यादा गरीब के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है कि वो खाने एक रोटी भी नहीं पका सकता। वो सारिफीन ने शदीद सर्दी के दौरान सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नए साल का जश्न, शहरियों ने चिकन से दोस्ती भुलाकर फिश के साथ मरासिम बढ़ा लिए। तफसीलात रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चिकन की कीमत तीसरे रोज भी 591 रुपए किलो बरकरार। बाजार में 600 रुपए तक बिकने लगा। आलू 82 की बजाय बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज 134 की बजाय मार्केट में 140 रुपए। टमाटर 4 रुपए सस्ता होकर 184 की बजाय 240 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन की कीमत 595 रुपए मुस्तहकम, बाजार में 600 रुपए किलो दस्तयाब। सब्ज मिर्च 15 रुपए इजाफे से 145 से 160, बाजार में 165 रुपए किलो। अदरक 25 रुपए सस्ता होकर 305 की बजाय 340
रुपए किलो में फरोख्त किया गया। अनार कंधारी 410 बाजार में 430 रुपए किलो तक बिकते रहे। इनमें भी चिकन के निर्ख में ठहराव बरकरार, कीमत 591 रुपए किलो मुकर्रर, बाजार में 600 रुपए तक दस्तयाब। फार्मी अंडे 329 रुपए दर्जन मुस्तहकम रहे। मछली 520 रुपए किलो, बाजार में 750 से 1100 तक मैसर। नया आलू 2 रुपए सस्ता होकर 80 की बजाय 110 रुपए, प्याज 130 रुपए, बाजार में 160 रुपए तक बिकने लगा। टमाटर 3 रुपए सस्ता 185 की बजाय 240 रुपए तक मुयस्सर। केला 5 रुपए महंगा 130 की बजाय 140 रुपए फी दर्जन। मौसमी 130 की बजाय बाजार में 210 रुपए दर्जन तक फरोख्त की। चिन्योट में चिकन की कीमत 591 रुपए किलो बरकरार, अंडे 329 रुपए दर्जन दस्तयाब। नया आलू 75 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए तक फरोख्त होने लगा। प्याज 130 की बजाय मार्केट में 150, टमाटर 10 रुपए कम होकर 175 की बजाय 250 रुपए तक फरोख्त। मूली 18, सब्ज मिर्च 130 और लीमू चाइना 68 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अनार कंधारी 400 की बजाय मार्केट में 500, अंगूर टास्की 250 रुपए किलो मुकर्रर, सिंगाड़ा 95 और अमरूद 80 रुपए में। सोबत टेक्सिंग में तीसरे रोज भी चिकन 591 रुपए किलो मुकर्रर, बोनलेस 700 रुपए तक फरोख्त हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 320 रुपए मुकर्रर, आलू 82 रुपए, मार्केट में 120 रुपए, प्याज 1 रुपए महंगा होकर 133 रुपए, मार्केट में 150 रुपए, सब्ज मिर्च 130 की बजाय मार्केट में 190 रुपए तक फरोख्त होने लगी। सेब 245 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 270 तक मुयस्सर। अमरूद 90 की बजाय मार्केट में 150 रुपए तक बिकने लगा। मजदूर तबके को नए साल में भी इस्तेहसाल और अफलास का गम सताने लगा। हालात के पेश नजर रोज दिहाड़ी नहीं लगती, इसलिए मजदूर परेशान हैं। मेहनत कश नए साल में भी इस्तेहसाल और अफलास का शिकार। हालात का मारा मजदूर तबका 2025 में भी मायूसी से दो चार। मजदूरों का कहना था कहीं कहीं रोज गुजर जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। जो हालात पेश नजर हैं, मुश्किल है बेहतरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी सोच विचार करे। दिहाड़ी 1500-1600 हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए। ये दावे करे देता कोई नहीं है, सिर्फ 1000 या 1100 हमारी दिहाड़ी देते हैं। हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उम्मीद नहीं है दिहाड़ी की, हमारे को 4-5 दिन हो गए हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही इधर, किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, काम ही नहीं है इधर। हुकूमत ने अगर बेरोजगारी के खिलाफ मुनज़्ज़म हिकमत अमली न अपनाई तो मजदूरों के लिए 2025 भी हलाकत खेज साबित हो सकता है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि नॉन फाइलर कमांडो को शदीद झटका, एफबीआर ने शादी का लड्डू भी कड़वा बना दिया। वो कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। नॉन फाइलर कुंवारों के लिए बुरी खबर। एफबीआर ने होटल और मार्की में शादी की तकरीबात की बुकिंग पर नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना करने की तजवीज दे दी। नॉन फाइलर्स के लिए शादी की तकरीब पर मजमूई बिल का 20% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 10% मुकर्रर है। एफबीआर ने तजावीज मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा रखी हैं। होटल मालिकान तकरीबात पर शहरियों से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करके एफबीआर को जमा करवाएंगे। हुकूमत ने तजवीज की मंजूरी दी तो नॉन फाइलर्स पर 2 गुना विद होल्डिंग टैक्स की शर्त आयद होगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर असमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने सनत की तरक्की के लिए कमर कस ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की तरक्की और बहाली के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स यकजा हो गए। चेयरमैन कायमा कमेटी बिलाल जमील की सरपरस्ती में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल कौंसिल का इजलास मुनक्कद किया गया। रेक्टर एनटीयू प्रोफेसर तनवीर हुसैन, सदर चैम्बर रेहान नसीम भरारा, सीईओ चनाब ग्रुप मियां लतीफ, सीईओ क्रीसेंट ग्रुप नवीद गुलजार, चेयरमैन पीएचएमए हाजिर खान शरीक हुए। चेयरमैन एब बूमा इमरान महमूद, साबिक चेयरमैन एब बूमा आरिफ एहसान मलिक, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने भी शिरकत की। हमारा इंपोर्ट कंट्री खासतौर पर यूरोपीय यूनियन या यूएस से जो डिमांडें आ रही हैं उनको हाउ टू मीट, क्योंकि वरना वो एक्सपोर्ट में हर्डल पैदा होंगे। फौरी तौर पे भी हैं मसाइल और कुछ अगले फ्यूचर के मसाइल भी हैं, वो अभी से शुरू होगा तो इंशाल्लाह। तो आज इस पे सारी बात हुई है। मीटिंग में 5 से 10 साल के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। शुरा ने फैसले में जल्द एक्सपो सेंटर की जगह हसूल पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन कमेटी बिलाल जमील कहते हैं कि आलमी मार्केट के म्यार के मुताबिक उतरना जरूरी है। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे लेकिन इसको रद्दी की टोकरी नहीं बनने देंगे। पहले भी टेक्सटाइल पॉलिसी यहाँ बनी लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। बिला वजह हम पॉलिसी दे के ज़ाया नहीं करना चाहते। हम इनपुट उस वक्त देंगे जब तक हमें मिनिस्टर के साथ मीटिंग मिलेगी, देन हम देंगे। क्योंकि लास्ट जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी अनफॉर्चुनेटली वो 95% कोलैप्स कर गई।
तो अगर हमारी पॉलिसी डस्टबिन में ही जानी है तो फिर वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम कि हम क्यों ज़ाया करें अपना वक्त। टेक्सटाइल काउंसिल मीटिंग में एक्सपो सेंटर को वक्त की जरूरत करार देते हुए फेडमिक बोर्ड से मंजूरी का फैसला भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के शहरियों के लिए सीवरेज और पीने के पानी के मसाइल हल ना हो सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 90 लाख की आबादी वाले पाकिस्तानी मानचेस्टर के शहरी बुनियादी सहूलियात को तरस गए। शमशाबाद, इस्लामपुरा, सैफाबाद, जौहर कॉलोनी समेत शहर के 16 इलाके सीवरेज के गंभीर मसाइल से छुटकारा न पा सके। शहर के पोश इलाके भी सीवरेज मसाइल से घिरे रहे। 2024 में 93 मुकामात पर सीवरेज लाइनें बोसीदा होने के बायस बैठ गई थी। उसको प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और एरियाज बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आ गए हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं है, बारिश का पानी नहीं निकलता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है और थोड़ी कैपेसिटी का है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, अब मॉनसून में इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता। वासा शहरियों को साफ पानी फराहम न कर सका। 2024 में भी योमिया 67 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। वासा हुक्काम की जानिब से शहर को पानी की फराहमी के लिए फॉरेन फंडिंग से पानी की कमी को पूरा करने के लिए 4 मंसूबों पर काम जारी है। हुक्काम का कहना है कि 2025 के इख्तिताम तक फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से 30 मिलियन गैलन योमिया साफ पानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। देखिए, ये इस शहर में जो सबसे बड़ा अगर मसला आप मेरे से पूछते हैं तो वो मैं कहूँगा सीवरेज का प्रॉब्लम था। लेकिन हमारी इस इलाके की लोगों की जो डिमांड थी उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमारी जो है वो अप्रूवल दी है। कैबिनेट से हमारा केस अप्रूव हुआ है 10.8 बिलियन रुपीस का, तकरीबन 11 अरब रुपए का हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। अगरचा इस साल भी सीवरेज और वासा के मसाइल हल नहीं हो सके, ताहम फंड्स के इजरा के बाद आइंदा 3 सालों में फैसलाबाद में सीवरेज और साफ पानी के मसाइल हल होने का यकीन जरूर पैदा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसला।